Okay, student, good afternoon, and inform your classmates that class is going on. Join it as soon as possible. And the dart underscore 27, please choose your own name. Kindly join classes by using your own name. Don't use fancy names. So in the meantime, if you have any kind of doubt or queries, then you can ask. Okay, till now 9 students have joined. 10. Okay, before starting classes, I want to know that have you studied about one subject which is known as discrete mathematics? Yes, student. No response from your side. I asked a simple question. Have you studied discrete mathematics? Because in today's session, we will use some of the concept related with that. Am I audible to all of you? Okay. Okay. So let's start today's session. So we come into the module 3, as I told you, and in this module, we have to go on through mathematical approach. So in this, the first thing, as I informed in the Google Classroom also, that we will study about these things like what is group, what is ring, and what is field, and other things also like additive inverse and multiplicative inverse. And I think you know about multiplicative inverse in it. Okay, so these things I think you have studied in discrete mathematics also. Can anyone tell me, have you have a knowledge about this topic? What is group, ring, and field?
Yes, please tell me, do you have knowledge about these things? Waiting for your response. Do you know what is group, or what is binary relation, or what is set? Have you heard this term before? Yes, sir. Okay. Okay. Okay, only 2 students have knowledge about this. Very good. So the background which we will study today is group, field, and ring. And I think you have a knowledge about this because I think in the discrete mathematics you have studied about set. Set क्या होता है student? Please tell me what is set? What is set? Sir, unordered collection of different elements. Unordered collection of different element. Good. So थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं. What will be the relation? What will be the relation? Yes, I asked you something. Do you know about this thing? And I know that discrete mathematics आप लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है. So please reply. Okay, let's start from name by name. The way in which two or more set or things are connected. Relationship between two set. Okay, some of the students have replied. So for the relation, there is a need of operator, or we need a certain type of operation. Okay, which is represented by star. So यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास सेट होता है like set we have A and we have a set like B, and like we can operate it. What are the various relation possible between the elements of these two sets can be represented by A Cartesian product of B. Okay, and the element will be like AI comma Bj. Okay, where AI belongs to the set A and Bj belongs to set B. So इस टाइप से हमारे पास क्या होते हैं, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. तो वी हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशन, and we have other various kinds of relation, like we have reflexive relation. A connected acyclic graph is called tree. Cycle free graph is called tree. A connected. Suman Raj, what are you doing? And okay, so we have a reflexive relation, we have symmetric, we have anti-symmetric, asymmetric, and we have transitive.
Okay, so these are the various types of relation which we have studied. मैं इन सब चीजों को आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए स्लाइड्स वगैरह पहले शेयर किए जाते हैं ताकि आप जो क्लास से रिलेटेड चीजें हैं वो पहले पढ़ के आए कुछ, बट एज आई कैन सी दैट none of you have any kind of interest. So these are some of the topics. जैसे कि मैंने पिछले बार भी देखा था आप लोग को, मैंने इनकोडर और डिकोडर के बारे में पूछा था, आप लोगों ने बोल तो दिया था कि यस आता है, बट नेक्स्ट डे जब मैंने पूछा तो आप लोगों में किसी को नहीं आ रहा था। ओके, तो थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करके आया कीजिए, इसीलिए डेटा दिए जाते हैं। सो चलिए, ग्रुप थ्योरी के बारे में अगर हम देखें तो ग्रुप थ्योरी, दिस इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द ग्रुप थ्योरी एंड ऑल द relation between them. Like if we have a relation and it is following the closure property, if it is following the closure property, it means that if I am applying a operation in a two different set of same set and all the elements which is present in the relation and it is also available in our set, then it is called as it has a closure property. And if it is following the closure property, then it is called as a algebraic structure. Okay, this is called as a algebraic structure, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका associative property. Associative property, can anyone tell me what is associative property? Yes, student, what is associative property? What is associative property? Okay. Bracket changing rule. Bracket changing rule. Rearranging parentheses will not change the result. Okay. The dark underscore 27, I told you to change your name. Please change it. And the answer which is posted in the with the help of relation, it is right. That, and I think Ansuman and Madhu Singh, whatever they are trying to represent is the same. I'm assuming that कि आपका क्या होता है, जैसे कि अगर there is a relation A star B star C and this is equivalent to the A star B star C, if our relation follows this property, then that will call the having the associative property. And if a relation having the associative property or set having the associative property, then that is called it is the semi group. Closure property, then algebraic structure, associative property, then semi group. If have a identity element present in our set, then it is called that it is monoid. What is identity element? Like this. If I am assuming E is a identity element, then this will become like this, or E star A will be also equal to A. Then E will be called as an identity element. And if this identity element will be present in the set A, then that set will be called as a monoid. Then we come upon to the group. Group में क्या होते हैं, ये सारे property, closure, associativity, identity, and as well as
each and every element must have a inverse in the set. Like if I am assuming A as an element of capital A set, then A into your operation by A inverse, then it will produce the identity element E. If it is present for each and every element of the set A, then it is called as the group. और देन आपका लास्टली आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप सभी जानते होंगे, A star B is equal to B star A. Okay, then if it is following in the set, then it is called as a abelian group. Okay, so this is all about the group theory related with a set. सभी याद रखिएगा, क्लोजर क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, और अगर इन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अगर एक सेट, तो वो क्या कहलाता है. ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर दिस. सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी को अलग अलग डिटेल में देखेंगे. आपका क्या होता है? ग्रुप. तो ग्रुप जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव अ क्लोजर प्रॉपर्टी, it must have the associativity property, it must have the identity element, and along with this it must have the inverse of each and every element. If this four property will be followed by a set, then it is called as a group. A set of element or numbers with a binary operation whose result is on the set. ये also in the set का क्या करने का मतलब है कि it is talking about the closure property, and it is also following various axiom like associativity law को follow करना चाहिए, identity element होना चाहिए, inverse होना चाहिए each and every element के लिए. तो ये क्या कहलाएगा? This will be called as a group. Okay, क्योंकि हम आगे चल के यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां इन सब चीजों का यूज होगा. सो बी प्रिपेयर विद दैट कि दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रुप. एंड जैसा कि हम जानते हैं अबेलियन किसको कहते हैं? अबेलियन ग्रुप कब कहलाता है? इफ इट इज हैविंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ? जैसे कि हमने प्रीवियस बताया, ए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, देन इट विल कॉल्ड एज अ ग्रुप. ओके, सभी को क्लियर है व्हाट इज about the algebraic structure and all these things, semi group, monoid. yes student, सभी को क्लियर हुआ व्हाट इज ग्रुप? कैसे ग्रुप हो रहा है? पहले आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद क्या बन रहा है आपका? सेमी ग्रुप. सेमी ग्रुप के बाद क्या बन रहा है? मोनोइड. मोनोइड के बाद क्या बन रहा है आपका? ग्रुप. तो ये जो ऑर्डर है इसको याद रखिए कि किस ऑर्डर में किस चीज को फॉलो किया जाता है, तो आपका रिजल्टिंग कैसे बनता है. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. देन आपका आता है रिंग. रिंग क्या होता है? तो रिंग क्या होता है? अ सेट ऑफ एलिमेंट विथ टू ऑपरेशन. ग्रुप में क्या होता था? हमारा सिंगल ऑपरेशन होता था, लाइक आपका मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है या मॉडुलस है या एडिशन है, किसी भी टाइप का सिंगल ऑपरेटर होता था. बट रिंग में क्या होता है? अ सेट ऑफ एलिमेंट विथ टू ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, विच आर एन अबेलियन ग्रुप विथ द एडिशन ऑपरेशन. मतलब कि जो आपका एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन नॉट, इट इज नॉट एन एक्सॉर, इट इज ओनली द एडिशन ऑपरेशन. एडिशन ऑपरेशन आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए. आप कोई बोलेगा अबेलियन ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप having the commutative property is known as the abelian group. Okay, so abelian group होना चाहिए किसके साथ? एडिशन ऑपरेशन के साथ. और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है उसके साथ आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड आपका क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन.
डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन मतलब कि आपका जैसे हम लगा रहे हैं ए मल्टीप्लीकेशन बाय बी प्लस सी, तो इट विल बी रिजल्ट। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, मल्टीप्लीकेशन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें इस एडिशन के ओवर में, तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। अगर इस प्रॉपर्टी को अगर वो फॉलो करता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो प्रेजेंट होता है आपके सेट में, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो प्रेजेंट होता है आपके सेट में, तो कहलाता है कि इट इज फॉलोइंग द रिंग प्रॉपर्टी। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि आपका कम्यूटेटिव रिंग होता है। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, इफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, तो इन सारे ऑपरेशन के होने के साथ ही साथ अगर मल्टीप्लीकेशन आपका कम्यूटेटिव है तो आपका क्या हो जाएगा कि दैट इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव रिंग। तो आपका एडिशन के साथ तो आपका अबेलियन ग्रुप होना ही चाहिए, एडिशन के साथ आपका अबेलियन ग्रुप होना ही चाहिए, और इस साथ ही साथ अगर आपका कम्यूटेटिव रिंग बन रहा है तो मल्टीप्लीकेशन भी आपका कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव होना चाहिए। ओके, इंटरनल इंटीग्रल डोमेन किसको कहा जाता है, इफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आर आइडेंटिटी हैज आइडेंटिटी एंड नो जीरो डिवाइजर। इट मींस कि अगर जो आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब सिंपल सा अगर हम बात करें कि एक सिंपल मानते हैं कि एक आपका सेट है, एक सेट मैं लेता हूं A इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, इफ A is a set having 3 elements 1, 2, 3, and now I am talking about multiplication operation and I am asking you whether an identity element present in this group or not. Yes sir, 1. Yes, very good. 1 is a multiplication. Identity element होता क्या है, if you are applying that identity element with the operator on any element, that element will be present as a resultant. Then it is called as it has a identity property and no zero divisor. आप यहाँ पे जीरो नहीं मिल रहा है कि आपको किसी जीरो के साथ डिवाइड करना पड़ रहा हो। इट मींस कि जैसे कि हमारा दिस इज कॉल्ड एज इसको क्या कहा जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अनडिफाइंड सर, अनडिफाइंड या सिंपली कहा जाए कि आपका ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वैल्यू निकालना, क्योंकि जीरो का इनवर्स यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर ये होता है तो इट विल बी कॉल्ड एज इंटीग्रल डोमेन। ओके, सो याद रखिएगा व्हाट इज रिंग। रिंग हैज 2 ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। एडिशन जो होता है वो अबेलियन ग्रुप के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर द एडिशन। ओके, नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव रिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहां सिंपल आ जाता है कि आपका कम्यूटेटिव होना चाहिए आपका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपका जो एडिशन है दैट इज ऑलरेडी अबेलियन ग्रुप। इट मींस कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है पहले से ही, तो जो हमारा सेकेंड ऑपरेटर है दैट मस्ट ऑल्सो फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट आपका इंटीग्रल डोमेन आता है। इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और नो जीरो डिवाइजर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फील्ड के तरफ। फील्ड क्या होता है, सो ए सेट ऑफ नंबर विथ 2 ऑपरेशन हैविंग द इंटीग्रल डोमेन एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑल्सो। मतलब कि फील्ड कब कहलाएगा, जब इंटीग्रल डोमेन होगा। इंटीग्रल डोमेन कब होता है हमारा, यस स्टूडेंट, इंटीग्रल डोमेन कब होता है हमारा, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा है व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन। नॉन जीरो कम्यूटेटिव। यस सर, जिसमें कम्यूटेटिव रिंग जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं, कम्यूटेटिव रिंग तो आपका हो गया कि इफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर।
और अगर आपका इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात करें तो आपका क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट के लिए आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, सेट के अंदर। इट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रेजेंस होना चाहिए और नो डिवीजन विथ जीरो होना चाहिए, तब कहलाएगा आपका इंटीग्रल डोमेन। तो फील्ड कब कहलाएगा, जब आपका दो ऑपरेशन यहां पे होगा और वो दोनों फॉलो करेगा इंटीग्रल डोमेन को एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। अब आपका इनवर्स भी आ रहा है तो इनवर्स को फॉलो करेगा। इनवर्स क्या होता है, जैसे कि आपका अगर इनवर्स का ए ऑपरेशन, मैं इसको ऑपरेशन बोल रहा हूं, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन या एडिशन नहीं बोल रहा हूं, ए ऑपरेशन विथ द इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ए विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए इनवर्स। और ये जब अगर हम कर रहे हैं तो अगर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा कि इट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फील्ड। अब हम इन्फिनाइट फील्ड कब कहेंगे कि ये इन्फिनाइट फील्ड है, इफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि अगर आपका, जैसे कि अगर हम बोलें कि इवन नंबर का अगर हम सेट लेते हैं, इवन नंबर का सेट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2 4 6 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर का सेट लेते हैं तो ये फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सो इन्फिनाइट फील्ड कब कहलाएगा कि इफ इट हैज द फील्ड प्रॉपर्टी, फील्ड प्रॉपर्टी इट मींस इंटीग्रल डोमेन और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ उस जो आपका सेट है उस सेट में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। उसी के अपोजिट होता है आपका फाइनाइट फील्ड। क्या होता है, तो फाइनाइट फील्ड क्या हुआ, इफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन आवर सेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप, ring, field, integral domain, multiplicative inverse, commutative ring, all about this. Okay, so इसको थोड़ा मेमोराइज रखिएगा बिकॉज दिस मॉड्यूल इज ऑल अबाउट दिस, यही बेसिक है आपका आगे बढ़ने के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक पे। मॉड्यूलर अरिथमेटिक आपका पूरा फोकस आपका मॉडुलस जो ऑपरेशन होता है, मॉड ऑपरेशन होता है, रिमाइंडर जो कि हमको रिमाइंडर प्रोड्यूस करता है उसके बारे में। ठीक है, डिफाइन मॉडुलो ऑपरेशन ऑपरेटर ए मॉड एन। अच्छा, मैं बोलूं कि ए मॉड एन, तो हाउ मेनी नंबर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस ऑपरेशन कैन हैव, how many possible value of this operation can have? 0 to n. 0 to n. n minus 1, sir. Yes, very good. 0 to n minus 1. Then how many numbers of result are possible? Numbers of result. n, sir. 0 count. Yeah, n. n result will be possible. सो ये हमें क्या देता है बेसिकली, मॉडुलस ऑपरेटर आप बहुत समय से पढ़ रहे होंगे, तो ये हमें क्या देता है बेसिकली, इट गिव्स अस द रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय n। ओके, यूजिंग द टर्म कॉन्ग्रेंस फॉर a कॉन्ग्रेंस टू b mod n, मतलब कि अगर आप a कॉन्ग्रेंस टू b mod n करेंगे, इट मींस b mod n करेंगे तो आपको कॉन्ग्रेंट टू a प्रेजेंट होगा। इट मींस क्या इसका, इट इज नॉट इक्वल टू, रिमेंबर दिस, इट इज कॉन्ग्रेंट टू दिस। कैन एनीवन टेल मी व्हाट कैन बी द रिलेशन? कॉन्ग्रेंस, मैंने आपको एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा था, टेस्ट में भी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम याद होगा आपको, CRT। इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए, अगर हम एक सिंपल ऑपरेशन करते हैं जैसे कि b
मॉड 5 करेंगे इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू ए लिख रहे हैं, तो ए जो है ए इज अ रिमाइंडर। तो अगर हम कह लें कि ए प्लस बी इंटू के फॉर्म में है ये, तो इज इट ऑल राइट? नाउ आई एम ब्रेकिंग दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म, क्योंकि अगर आप यहां पे के की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तब भी आपका यहां पे क्या होगा, एन की फॉर्म, यस एन होगा, ए प्लस एन मॉड के। इट मीन्स कि आपका एन का जो वैल्यू है, जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि 2 आना चाहिए रिमाइंडर आपका किसमें, बी मॉड 5 में, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आपका क्या होगा रिजल्टेंट, कि अगर आप बी से मॉडुलस ऑपरेशन करें तो 2 होगा, तो 2 होगा, 7 भी हो सकता है, 2 तो है ही, 2 तो एक आंसर है ही इसके लिए। हाउ मेनी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 12 हो सकता है, 17। ओके, सो यस सर पहला वैल्यू फाइंड करके और जितना से मॉड है ऐड करते चले जाएंगे। यस, उसको के से मल्टीप्लाई करके मॉड को ऐड करते जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा कि इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट इज नॉट इक्वल टू, बट कॉन्ग्रुएंट इज गिविंग अस द पॉसिबल सेट। पॉसिबल सेट हमको दे रहा है कि ये सेट पॉसिबल है जो कि ये वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहीं पे बोलेगा कि के की किस मिनिमम वैल्यू के लिए या के की इस वैल्यू के लिए हमारा क्या यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन होगा, तो you can find out by putting just the value of k. Okay, so this is about the modulus arithmetic. When divided by n, a and b have the same remainder. Okay, same remainder. तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम करते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया 34 mod 11, तो क्या होगा इसका वैल्यू 1। एंड अगर हम इस मॉड ऑपरेटर को इस साइड लेके जाते हैं तो क्या होगा वैल्यू 1। तो अगर कॉन्ग्रुएंस का ये मतलब कि अगर आप दोनों साइड में, जैसे कि आप क्या करते हो, ये चीज हमने पहले भी देखा है कि हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे था ना डी कॉन्ग्रुएंट टू ई मॉड फाई एन, ये मैंने क्या लिखा है, किसी को समझ में आया व्हाट इज दिस? यस सर, वो प्राइवेट की और पब्लिक की। यस यस वेरी गुड। जब हम आपका आरएसए में लगाते थे तो आरएसए में हम इसी टाइप से लिखते थे कि d इज इक्वल टू ई मॉड फाई एन। ओके, सो दैट इज द, तो b इज कॉल्ड द रेसिड्यू। जो आपका b है, b क्या कहलाएगा इस इक्वेशन में, कि दैट इज रेसिड्यू ऑफ a मॉड n। और b की जो वैल्यू होगी, ये आप जानते होंगे, अभी आपने बताया है कि b की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 से लेके कहां तक है, n-1। ओके, एंड ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है दिस इज लाइक दिस कि a इज इक्वल टू क्यू एन प्लस बी। ओके, a इज इक्वल टू क्यू एन प्लस बी, क्यू की आप डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको क्या हो जाएगा, a की डिफरेंट वैल्यू मिलते चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मॉडुलस ऑपरेशन। नाउ कम ऑन टू द divisor. So a non-zero number b is divisor of a if for some m have the value like this। कि अगर हम कहना चाहें कि अगर आपका जो b है, b is a divisor of a, b is a divisor of a, it means that कि कोई रेसिड्यू नहीं बच रहा है, it means कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, कोशेंट की वैल्यू आएगी m। तो आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, a इज इक्वल टू b इंटू m। सो दिस इज द डिवाइजर ऑपरेशन, दैट इज b डिवाइड्स a विथ नो रिमाइंडर। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल।
जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, 24 को ये जो सारे वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दे आर कॉल्ड एज अ डिवाइजर ऑफ 24। तो ये बेसिक है, बट पढ़ाना है, पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम आपका मॉड्यूलर अरिथमेटिक को ही हम और आगे बढ़ाते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या होता है? कैन डू मॉड्यूलर अरिथमेटिक विथ एनी ग्रुप ऑफ इंटीजर। अब मॉड्यूलर अरिथमेटिक की फैसिलिटी ये होती है कि हम इसको क्या होते हैं, सेट पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंटीजर पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज अबेलियन और मोनोइड और क्या है ये, इस स्ट्रक्चर को भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो आप ग्रुप पे भी, क्योंकि अगर आप एक सेट पे लगा रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक सेट है 0 से लेके 4, अगर हम मॉड 5 लगाएंगे किसी में भी अगर हम मॉड 5 का ऑपरेशन लगाएंगे, मॉड 5 का ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमें क्या होगा, इसी सेट में से कोई ना कोई एक वैल्यू प्रोड्यूस होगी। ओके, इसी सेट में से हमें कोई एक वैल्यू प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आपने कहा 0 से लेके n-1 तक में वैल्यू प्रोड्यूस होगी। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉड्यूलस अरिथमेटिक, कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस for a commutative ring for addition with multiplicative identity. Okay, so ये बात हम कहाँ पढ़े थे कि now we are talking about the ring, कि आपका दो ऑपरेशन है, वहां पे एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, so this is in that. तो अगर हम कहें कि a प्लस b congruent to a प्लस c mod n, तो हम यहाँ पे क्या सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप a को दोनों साइड से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप सिंपली इसको क्या लिखेंगे कि b is congruent to c mod n. You can write this equation like this because we can cancel out a from both sides. But ये तो हुआ एडिशन की बात, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है a into b is congruent to a into c mod n, तो यहां पे then b is equal to b congruent to c mod n only if a is relative prime to n. ओके, जैसे अगर हम कहें कि आपका क्या है, b इज इक्वल टू b कॉन्ग्रेंट टू c है, जब आपका जो a है, जो नंबर है, दैट विल बी द रिलेटिवली प्राइम टू दिस नंबर, और इस केस में अगर आप देखेंगे तो 10 इज रिलेटिवली प्राइम विथ 11, सो वी कैन से दैट 10 कॉन्ग्रेंट टू 3 mod 11. ओके, नाउ हम यहाँ पे दो टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक हुआ आपका एडिशन और एक हुआ आपका मल्टीप्लिकेशन। तो अगर 10 नॉट कॉन्ग्रुएंट होता ना, नहीं, मैंने वहां पर बस एक एग्जांपल दिया, मैंने ये नहीं बोला कि दिस इज अ राइट, मैंने बस एक एग्जांपल दिया कि अगर आपका ये कॉन्ग्रेंट होगा तभी आपका ये वैल्यू होगा, क्योंकि आपका ये पॉसिबल तो नहीं है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 10 आएगा, 10 इज नॉट इक्वल टू 3, ये पॉसिबल नहीं है, बट वहां पे अगर रिलेटिवली प्राइम है n के तभी ये पॉसिबल है। ठीक है सर, रिलेटिवली प्राइम बोलने का मतलब सर? रिलेटिवली प्राइम आपने पढ़ा होगा ना, को प्राइम नंबर्स, मॉड्यूल 4 में आपको को प्राइम नंबर्स मैंने पढ़ाया था ना। रिलेटिवली प्राइम कहने का क्या मतलब है कि अगर दोनों का हम जीसीडी निकाले, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाले, तो उसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो इन दैट केस वी टॉक अबाउट द रिलेटिवली प्राइम नंबर। ओके, यस सर। सो नाउ वी टॉक अबाउट मॉडुलस 8 एग्जाम्पल। 8 का मॉडुलस एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, और अगर हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। अब चलिए मैं पहले एक चीज आपको बता दूं, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब है कि अगर हम a प्लस b की वैल्यू को अगर हम ऐड करें,
ठीक है, वैल्यू को हम ऐड करें। यहाँ पे देखिए एडिटिव इनवर्स का ये टेबल है, एडिटिव ऑफ मॉडुलस 8। तो अगर हम 0 है जैसे वैल्यू 0, 0 प्लस 0 करेंगे और मॉड 8 लगाएंगे, मॉड 8 का ये टेबल है, तो आपका क्या ये वैल्यू देगा, 0 प्लस 0 विल बी 0 मॉड 8। सो आपका क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी 0। अगर हम 0 प्लस 1 करेंगे, मॉड 8 लगाएंगे, मॉड 8 लगाएंगे तो क्या वैल्यू प्रोड्यूस होगा, 1। तो 0 का टेबल तो आप इजिली फिल कर सकते हैं। लाइक हमारे पास है 6, 6 प्लस 5 क्या वैल्यू होगा, 6 प्लस 5 क्या वैल्यू होगा, 11। अब इसमें हम कर रहे हैं मॉड 8, तो ये क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, 3 प्रोड्यूस करेगा ना। तो 6 और 5, 6 और 5 यहां क्या वैल्यू आ रही है, 3। तो यू कैन fill the additive modulus with the help of this operation। इस टाइप से आप मॉडुलस, एडिटिव मॉडुलस का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन, ओके इट इज 503। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट? नो सर। Okay, give me a moment, student. I will provide you link for today's attendance. I have provided you link for today's attendance. Kindly fill it up. इसी तरह से जैसे हमने एडिटिव इनवर्स का टेबल बनाया, इसी टाइप से हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी टेबल बना सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन द मॉडुलस ऑपरेशन फॉर सम वैल्यूज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द इनवर्स। क्या किसी को याद है इन विच सिनेरियो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द इनवर्स ऑफ ए वैल्यू इन अ मॉडुलस अरिथमेटिक? मैंने मॉड्यूल 4 में आपको ये चीज बताया था। मॉड्यूल 4 में या 5 में? मॉड्यूल 5 में ये चीज बताया गया आपको। टॉपिक में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, टॉपिक आपको पता होगा ना क्या पढ़ाया गया, आप तो क्लास में प्रेजेंट हैं। टॉपिक में आज आपको ग्रुप पढ़ाया गया, फील्ड पढ़ाया गया, रिंग पढ़ाया गया है। देन Yes, sir. Yeah, no. Okay. Okay, 15 students have responded. At least 18 are here. So student, do you have any kind of problem in the topic which we discussed today? Please do let me know.
ओके and all of you did you check the marks file? Did you check the marks file of test what was conducted on the previous extra class? Have you checked that? Are you satisfied with your performance? Ashish Kaushal, how many marks did you get? 1 marks. And you are satisfied? Okay. Very good. Okay, so those who was not satisfied with your performance, have you attempted those questions? Because I have already uploaded the question paper in your Google Classroom. Did you try to solve those questions? अच्छा, क्वेश्चन आसान थे या मुश्किल थे बहुत ज्यादा? लेवल बहुत हाई था क्या? मुश्किल? टाइम कम था? अच्छा, किस क्वेश्चन में लगा कि टाइम बहुत कम मिला? ओके, सो ओके, प्राइवेट की के लिए वैल्यू 43 आ रहा है। प्राइवेट की वाले में यस सर, उसमें आंसर 43 आ रहा है ऑप्शन में सर सब 3800 3000 से के ऊपर अप्रोक्स है। यस सर, हमारा आंसर 43 आ रहा है। ओके ओके, आप लोग का आंसर 43 है। ओके, चलिए। अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो कि बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता था, बट आप लोगों ने उसका भी आंसर एकदम मतलब कि बहुत गलत दिया है। ऐसा क्यों है? बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे। ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिस्पॉन्स शीट। अगर किन्हीं का रिस्पॉन्स नहीं होगा तो डू लेट मी नो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जहां तक मुझे याद है, दिस वाज द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, और ये सारी चीजें आपके क्लासेस में भी डिस्कस की गई थी, सब कुछ बताया गया था। इवन क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, अच्छा आप लोग जो बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पब्लिक की तो वैल्यू 43 गिवन ही है, सर और प्राइवेट की सर प्राइवेट की 43 आ रहा है। उतना ज्यादा नहीं है। ओके ओके, बट मैंने जब सॉल्व किया था तो इसका वैल्यू आ रहा था। ओके, ओके सर, चेक कीजिएगा उसको। सर ऑप्शन चेंज करने का भी नहीं था, वो गलती से दूसरे पे लग के वोट होगा, उसके बाद फिर हुआ ही नहीं ऑप्शन चेंज। आपका जो आवाज है वो हेलो यस मधु। सर, ऑप्शन चेंज करने का भी नहीं था उसमें, वो गलती से दूसरे वाले पे लग गया, उसके बाद वोट हो गया, उसके बाद चेंज करने जाए। वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर बहुत इजी था, वो उसमें भी गलती हो गया। वो एमआर शीट फिल किए हैं कभी? यस सर। उसमें ऑप्शन होता है चेंज करने का? नहीं सर। देन
मैं रिस्पॉन्स आप लोग का पढ़ रहा था, उसमें भी आप लोग लिख रहे थे ऑप्शन चेंज करने का नहीं है, दिस दैट। ठीक है, और देर इज अ रीजन, मैं एक चीज बता दूं, लेकिन मुझे सेकंड टेस्ट भी लेना है, मैं सोचा था बाद में बताऊंगा। देर इज अ रीजन कि गेट में आपका नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते हैं? अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते सही से तो आपको पता चल गया होता, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन यू कैन गेट द रिजल्ट विद इन अ मिनट। आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत टाइम ज्यादा लग रहा है। सर अनेबल टू फिल अटेंडेंस, ओके अगेन आई एम ओपनिंग द अटेंडेंस लिंक। मनीष, मनीष कुमार, यस आई हैव इनेबल्ड द लिंक। देर इज ए रीजन कि क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे जाते, क्योंकि आप ऑप्शन से ही उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते थे। जो लोग बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये है, तो हैव यू ट्राइड कि आप ऑप्शन को वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू गिवन था, 4 वैल्यू गिवन थी, आपने इनवर्स टेक्निक लगाया कि आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट आपका क्या हो कि आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आपने ट्राई किया वैल्यूज को जस्ट पुट करके? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी ने ट्राई किया था ये चीज? क्वेश्चन नंबर 5 में भी, इवन क्वेश्चन नंबर 5 में भी, अगर क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका यूलर टोटल था, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बोला कि आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसको पुट करते, उसको मल्टीप्लाई करते, d इंटू ई मॉड फाई एन में अगर सिंपली लेके जाते और उसका वैल्यू आपका रिमाइंडर 1 आता, तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते थे। बट आई थिंक कि लोगों ने ये तरीका नहीं चूज किया। सो इट इज अ क्विक अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस क्वेश्चन के लिए मैंने जहां तक मुझे याद है 5 मिनट का समय दिया था इसको सॉल्व करने के लिए। एंड ये चार ऑप्शन को पुट करने में और रिजल्ट पाने में मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। कैलसी पे रखेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। इवन क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप अगर यहां पे भी वैल्यू पुट करते इक्वेशंस में, तो आपका रिजल्ट आ जाता। बट आई थिंक यू हैवंट ट्राइड दिस अप्रोच। किसी ने सर ट्राई क्वेश्चन, किया? हेलो यस सर। आशीष। सर क्वेश्चन नंबर 5 में सर वो P23 है, Q43 है, तो सर वो तो प्राइवेट वैल्यू होगा, उतना ज्यादा तो हो ही नहीं पाएगा ना सर, क्यों नहीं हो 3000 सकता? के अप्रोक्स। क्यों नहीं हो सकता? क्या मतलब इज देयर एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन आरएसए कि आपका वैल्यू बिगर नहीं हो सकता? आपका क्या है वहां पे कि आपका जो d इंटू ई होना चाहिए वो मॉड फाई एन में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। d मस्ट बी इनवर्स ऑफ e और e मस्ट बी इनवर्स ऑफ d। आप उसमें वैल्यू पुट तो कीजिए, आपको रिजल्टेंट नहीं आएगा तब तो बताइए। लेकिन ये इस अप्रोच से चलते सर P-Q और Q-P, तो उस तरीके से तो उतना ज्यादा वैल्यू आता ही नहीं है सर। अच्छा, मैंने आपको जो आपने सॉल्यूशन पुट किया था फॉर द असाइनमेंट 1, मैंने यस सर। बहुतों को रिप्लाई किया था कि व्हाट विल हैपन इफ द वैल्यू ऑफ आई और के विल बी लार्ज। उसको किसी ने पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की कि मैं क्या लिख रहा हूं कमेंट? जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों मैंने लार्जर वैल्यू लिया है यहाँ पे। और जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन को अगर आप पुट करते, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते, तो आपको वैल्यू मिल जाती। मैं स्मॉल वैल्यू भी दे सकता था एंड यू विल गेट दैट रिजल्ट, बट देयर वाज अ रीजन टू सेलेक्ट द लार्जर वैल्यूज। यस सर, आप समझ गए सर। ये सर मॉडुलस ऑपरेटर है तो रिमाइंडर सेम होना चाहिए, वैल्यू तो कितना भी लार्ज ले सकते हैं। यस, ये तो चीज आज भी मैंने बताया है कि आपका
केस में आप वैल्यू मल्टीप्लाई करते चले जाइए और वो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ऑल दोज वैल्यू विल बी द, जो सेट बन रहा है उस सेट में कोई भी वैल्यू सही है उसके लिए। यस सर, आप समझ गए सर। यस, इवन जो सीआरटी था, सीआरटी को आप जो राइट अप्रोच है सीआरटी को सॉल्व करने के लिए अगर उसको फॉलो करते तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता था। इसीलिए मैंने जो राइट अप्रोच है उसके लिए भी मैंने आपको 4 मिनट का ये टाइम दिया था आपको, ठीक है। अगर राइट अप्रोच में मतलब कि Z1 कैलकुलेट करते, M की वैल्यू कैलकुलेट करते, A इनवर्स कैलकुलेट करते, फिर सबको मल्टीप्लाई करते, A1 A2 A3 A4 मल्टीप्लाई करते, फिर आप वैल्यू लेते, तब भी आपका 4 मिनट में वो चीज सॉल्व हो सकता था। बट अगर आपको उसमें इनवर्स लगा करके पुट करते तब भी वो वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें भी सब लोगों ने गलती कर दी। फिर मैंने एक्सटेंडेड इक्लूडियन पूछा था जो 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसमें अगर आप टेबल क्रिएट करते, जो कि मैंने टेबल आपको बताया हुआ है, QR1 R2 R T1 T2 T, वो भी किसी ने सॉल्व नहीं किया सही से। इनवर्स की वैल्यू बहुत लोगों ने सही निकाल ली, बट जो मैंने पूछा कि R की वैल्यू क्या होगी जब T की वैल्यू 582 या कुछ ऐसे ही था, 582 ही होगा आई थिंक, तो वो वैल्यू नहीं निकाला क्योंकि आपने टेबल नहीं क्रिएट किया होगा। So these are some of the, try to learn from your mistake. Okay. क्वेश्चन Okay, नंबर sir. 8 में भी मैं देखा कि बहुत लोगों ने गलती किया है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था आपका कि आपका 2 राउंड ऑफ डीएस लग रहा है और आपको नंबर ऑफ बिट्स पूछे गए थे। ये क्लासरूम में मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और इसके लिए 2 मिनट दिए गए थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें भी पैटर्न अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते तो आपको पैटर्न मिल गया होता। ओके, सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड डोंट रिपीट योर ओन मिस्टेक। ओके स्टूडेंट, so I'm ending today's session right here right now. Thank you student, have a nice day, we'll meet in next session.